Welcome students, welcome to Ujjwal's biology classes. Today I am going to start with the topic menstrual cycle. Now the slides which I have given to you, the video which was previously discussed in the WhatsApp group, in that you have heard about the male and the female reproductive parts. A very brief idea was given in those. Next, coming on to, we had the topic of spermatogenesis. We had discussed about the oogenesis, that how spermatogenesis takes place in the primary organ of males, that is the testis, and about the process of oogenesis in taking place in the primary organ of the females, that is in the ovary. After that, we had also discussed about the hormonal control of spermatogenesis and about in oogenesis. So now the important part of this topic is, which is only taking place in human females, that is about the menstrual cycle. So today we will be discussing about this thoroughly. Now, first of all, I will be just giving you a snapshot as to where does this menstrual cycle occurs. Obviously, we know we are talking about human reproduction, so this phase carries on in human reproduction, but are there any other organisms in which this process takes place? The answer will be yes. If we talk about the class Primata or the primates, which is inside the chordates or the vertebrates. In vertebrates, we have a class that is the primates, and in primates, all the females, like in primates we have the monkeys, the apes, the orangutans, gorillas, and of course the human beings. So in these primates, we have a special cycle which goes on every month, that is known as the menstrual cycle. We had discussed in chapter 1, that is in reproduction in organisms, that there are two types of cycles which goes on in the animals: the oestrus cycle and the menstrual cycle. So all in which the oestrus cycle takes place, those group of animals are known as non-primates, and all those animals in which menstrual cycle takes place, those animals are known as primates. So in all the females of the primates, we will be having this type of cycle which is called the menstrual cycle. Now what are the things which happens in this? First of all, the menstrual cycle will be carrying on for a time period of, like say, 28 to 32 days in the females. Okay, this cycle will last for about 28 to 32 days in the female primates. Next, we will be seeing that in all, it is a cyclic change in which certain changes are occurring inside the body, and we will be studying about the changes in the ovary, changes in the female uterus, and the changes in the hormones of the body. मतलब क्या है ना, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल किन के अंदर होते हैं ना, जितने भी प्राइमेट फीमेल्स हैं, जैसे कि पूरा एप फैमिली हम लोग अगर बात करते हैं, तो उनके अंदर आपके जो फीमेल है उनके अंदर ये साइकिल चलेगा हर महीने. ठीक है. उसके बाद ये जो आपके टाइम पीरियड है वो कितना दिन का होगा ना, लगभग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, दैट इज रफ टू बी अबाउट फ्रॉम 28 टू 32 डेज. किसी किसी के अंदर, जैसे अगर मैं मंकीज और एप्स की बात करूं, किसी किसी में 37 डेज तक भी हो सकता है. बट फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल आपके 28 टू 32 डेज का ही होता है. इसमें चेंजेस जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा होगा ना, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल, दैट इज द ओवरी.
the secondary sex organ of the female, which is the uterus, and the hormone changing due to which this take place. अब सबसे पहला दो टर्म हमारे पास यहां पर आएगा. एक होगा अबाउट द मेनार्क. नाउ व्हाट इज दिस मेनार्क? मेनार्क हम लोग उस पोजीशन को बोलेंगे जहां पर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा फीमेल्स के अंदर. ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विच विल बिगिन इन द फीमेल्स, उसको हम लोग नाम देंगे, उस टाइम पीरियड को नाम देंगे हम लोग मेनार्क. और जनरली ये कब शुरू होगा? जब फीमेल्स अटेन करेगा प्यूबर्टी, दैट इज फ्रॉम 10 to 15 years जब होगा. तो ये 10 से 15 साल के जो आपके वुमेन होते हैं, ठीक है, गर्ल्स होते हैं, उनके अंदर सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ऑकर होगा उसको हम लोग नाम देंगे मेनार्क. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेकेंड टर्म, दैट इज द मेनोपॉज. अब पॉज का मतलब क्या होता है? रोक देना उसको. ठीक, तो द स्टॉपिंग, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब हमारा द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर हो जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे मेनोपॉज. और यहां पर ये कब होगा सर? ना, ये जनरली 45 to 55 इयर्स के जो आपके वुमेन होंगे उनके अंदर देखा जाता है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिटार्ड्स और ये टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है. ठीक है, अगर एनसीईआरटी के लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरह मेंशन है अबाउट 50 इयर्स. मतलब जब 50 इयर्स हो जाएंगे तब, तो एक रफ एस्टिमेट है कि 45 to 55. अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वहां पर अच्छी तरह लिखा हुआ है कि 50 इयर्स के इधर उधर में ही आपका ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होगा? प्राइमेट्स के अंदर होंगे. प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिफरेंस क्या है? नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो सेक्सुअल साइकिल चलेगा उसको हम लोग नाम देंगे ओएस्ट्रस साइकिल, और जो प्राइमेट्स के अंदर होंगे उसको हम लोग नाम देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, प्राइमेट्स कौन से होते हैं? मंकीज, एप्स, ओरंगुटान, गोरिल्लास, ह्यूमन बींग्स, दे ऑल कम अंडर द प्राइमेट्स और द प्राइमाटा. ठीक है, नेक्स्ट, प्राइमेट्स कौन से में? फीमेल्स के अंदर होंगे. ये टाइम पीरियड कितना होता है ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर? फ्रॉम 28 to 32 डेज के होंगे. ओवरी चेंजेस जो हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो ये चेंजेस हम लोग एक्चुअली 3 चीजों के अंदर चेंज होगा. वो 3 चीजों को ही हम लोग अलग अलग लेके आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा. सबसे पहला चेंज होगा ओवरी के अंदर, सेकंड चेंज होंगे यूटेरस के अंदर, और फाइनल जो चेंजेस होगा जिसके वजह से ये दोनों के अंदर चेंजेस होंगे, दैट इज द ऑल्टरेशन ऑफ द चेंजेस ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द फीमेल. सबसे पहला जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे मेनार्क. और जनरली ये आपका शुरू होता है कब? जब एक गर्ल आपका प्यूबर्टी स्टेज अटेन करता है, दैट इज फ्रॉम द 10 to 15 इयर्स. वही चीज मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चलेगा हर महीने, और चलते चलते दैट टाइम पीरियड के बाद जब आपका एक वुमेन लगभग 45 to 55 इयर्स के अंदर हो जाता है, मतलब अबाउट 50 इयर्स के जब उनके अंदर हो जाएगा, द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विच विल ऑकर, दैट विल बी नोन एज मेनोपॉज. मतलब मेनोपॉज अगर कंडीशन अचीव हो गया है, देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस इन दैट पर्टिकुलर फीमेल. ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कि एक्चुअली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको हम लोग क्या क्या चेंजेस हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो इस चेंजेस को पढ़ने से पहले हम लोग इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे. इस चेंज को, एक होगा डिस्ट्रक्टिव चेंज और दूसरा हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव चेंज. ये दोनों क्या है हम लोग अभी वो चीज को पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपके चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है कि अगर मैं इसके अंदर चेंजेस की बात करूंगा तो ये जो चेंजेस होंगे वो आपके 2 प्रकार के चेंजेस जनरली होंगे. एक होगा
जिसको हम लोग नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस, और दूसरा हो जाएगा द कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। ठीक, आपको थोड़ा सा लगेगा हाँ डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ चीजें यहां पे आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक, तो क्लास 10th क्लास 9th में भी आप लोग, इवन क्लास 8th में भी, जब सबसे पहले आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप लोग अवेयर हुए थे, वहां पर भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ था ना। क्या, जब आपका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन किसका होता है इन ह्यूमंस? द स्पर्म विद द ओवम। अब ये जो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करेगा और वो बनेगा जाइगोट। ये जाइगोट अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब द स्पर्म डिडंट मीट विद द ओवम, तब जाइगोट नहीं बना। और जाइगोट अगर नहीं बनेगा तो जो चेंजेस होंगे उस चेंजेस को हम लोग बात करेंगे इन द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव चेंज, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ ना कुछ आपका चीजों को बढ़ रहा है, बना रहा है इसके लिए, तो वो कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो constructive change will occur after fertilization and becoming of a structure the zygote, और destructive changes जो है वो कब होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका जाइगोट नहीं बना, क्या चेंजेस होगा? डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। ठीक है, तो इस डिस्ट्रक्टिव चेंजेस के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे ना। इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है ना? डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसके अंदर ऑफ द प्री जेस्टेशनल एंडोमेट्रियम। ओके सर, एंडोमेट्रियम क्या है सर ना? याद करिए, द पियर शेप्ड यूटेरस था, और इस पियर शेप्ड यूटेरस का जो इनर वॉल था, इस इनर वॉल को हम लोग नाम देंगे एज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस दैट इज द एंडोमेट्रियम। ठीक, जेस्टेशन इस शब्द का मतलब क्या है? आप अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्लाइड को रेफर करेंगे तो मेरा जो फर्स्ट स्लाइड था जहां पे मैंने एक स्नैपशॉट दिया था कि क्या क्या ये टर्मिनोलॉजी होगा, उसके अंदर आपको जेस्टेशन मिल जाएगा। जेस्टेशन कब होता है ना? द टाइम पीरियड जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है, इंप्लांट हो गया है, तो इंप्लांटेशन ऑफ द जाइगोट कहां पर होगा? इसी यूटेरस वॉल में होगा। जाइगोट आपके चिपक जाएगा, और इंप्लांटेशन के बाद पूरा फॉर्मेशन, एम्ब्रायो बनेगा जाइगोट से, एम्ब्रायो से और फुल्ली डेवलप्ड होकर आपका फीटल स्ट्रक्चर बनेगा, फीटस बनेगा, एंड फाइनली व्हेन दैट फीटस विल बी रेडी एनफ टू गेट डिलीवर्ड आउट, जिसको हम लोग पार्ट्यूरिशन बोलते हैं, द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड फ्रॉम जिसके अंदर जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है विच इज अबाउट 9 months इन ह्यूमन फीमेल्स, तो दैट टाइम पीरियड को हम लोग नाम देंगे जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो जेस्टेशन होने के लिए, क्योंकि ये सारा चीज जो हो रहा है सर, ये जो एंडोमेट्रियम बन रहा है वो क्यों बन रहा है? ताकि जैसे ही आपका ये जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा, बनके जब ये यूटेरस के अंदर आएगा, अब उसको इंप्लांट होना है, तो इंप्लांटेशन होने से पहले ये एंडोमेट्रियम बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाना चाहिए, ताकि उसको आसानी से आके और वो जो आपका जाइगोट बना वो चिपक सके, एम्ब्रायो जो चिपक सके वो। ठीक, बट यहां पर अभी तक जेस्टेशन नहीं हो रहा है। क्यों जेस्टेशन नहीं हो रहा है? बिकॉज ओवम अभी तक फर्टिलाइज ही नहीं हुआ सर। ठीक, लेकिन एंडोमेट्रियम तो उसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहां पर जो आपका ओवरी से जो निकला वो अब क्या होगा? थ्रू द फैलोपियन ट्यूब आके इट विल बी एंटरिंग इनटू द यूटेरस। ठीक, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो यूटेरस में आएगा, अब अगर उसको जाइगोट ही नहीं बना, क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिला कोई, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो देन दैट ओवम विल ऑल्सो नॉट गेट इम्प्लांटेड, ऑब्वियसली, तो जरूरत ही नहीं है, तो वो ओवम जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उस ओवम को कैप्चर करने के लिए, मतलब अभी तक जेस्टेशन नहीं हुआ, तो प्री मतलब पहले,
तो जेस्टेशन पीरियड के पहले का जो एंडोमेट्रियम है, समझ में आया? प्री जेस्टेशनल एंडोमेट्रियम, दैट एंडोमेट्रियम विच इज फुल्ली ग्रोन, इट हैज बिकम फुल्ली ग्रोन टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लांट अ लिटिल एम्ब्रायो। ठीक है, क्लियर? और जब इम्प्लांट हो गया मतलब आपका फर्टिलाइजेशन से प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगा सर, उसके बाद वो इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग जेस्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उस जेस्टेशन के लिए आपका एंडोमेट्रियम पहले से तैयार होकर रखा हुआ है, बट यहां पर क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव चेंजेस पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि यहां पे होगा नहीं तो उस एंडोमेट्रियम का आपका कोई दरकार नहीं होगा। तो दैट प्री जेस्टेशनल एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, समझ आया पहला पॉइंट? सेकेंड पॉइंट के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो अब ये जो टिश्यूज है, ये एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा बाहर। तो यहां पर हो जाएगा जो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज है वो छोटे छोटे क्या बनाएगा? वो बनाएगा स्ट्रिप्स। सो स्ट्रिप्स ऑफ एंडोमेट्रियम विल बी डिस्कार्डेड आउट। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम है अब वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद जो भी टिश्यूज आपका फॉर्मेशन हुआ था वो सारा टिश्यू धीरे 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 स्ट्रिप्स के आकार में, छोटे छोटे टुकड़ों के आकार में वो अब बाहर निकलना चालू होगा। समझ में आया? ठीक, अब ऑब्वियसली सर ये कोई टिश्यू है, कुछ मसल था, उस मसल को तोड़ के उसके बाद वो निकल रहा है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी ब्लड लॉस। ठीक है, तो यहां पर देखा जाता है नॉर्मली 40 to 80 ml ऑफ ब्लड भी आता है। ऑब्वियसली सर कोई टिश्यू है, बॉडी का अंदर कोई टिश्यू होगा, वो टिश्यू अगर ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली ब्लड लॉस होगा। ठीक है, तो वो ब्लड भी जैसे एंडोमेट्रियम स्ट्रिप्स डिस्कार्ड होता है उसके साथ साथ जो चीज निकलेगा थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड भी निकलेगा। कितना अमाउंट? 40 to 80 ml ऑफ ब्लड विल बी कमिंग आउट। ठीक है, और क्या क्या होता है और क्या क्या निकल के आता है ना? ऑब्वियसली सबसे पहला चीज, जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवा इसके अंदर आया, तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम, तो इसके अंदर से और क्या आएगा सर बाहर? द ओवम विच इज अनफर्टिलाइज्ड, ये भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, और एक आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर आता है, अभी हम लोग बात करेंगे उसके लिए, ये नाम याद रखना, फाइब्रिनोलाइसिन। क्या प्रोटीन है सर? फिब्रिनोलाइसिन भी आप बोल सकते हो या फाइब्रिनोलाइसिन। सर इस फाइब्रिनोलाइसिन को अगर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करें, ये नाम आपको फाइब्रिनोजेन से आ रहा है। फाइब्रिनोजेन याद है? भूल गए? फाइब्रिन याद करो, क्लास 11th में हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़े थे और उस एनिमल टिश्यूज के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज करो दिस इज योर वन काइंड एनी काइंड ऑफ टिश्यू। अगर ये टिश्यू का कहीं पर आपका कुछ रप्चर हो जाए, टूट जाए, तो यहां से क्या होगा सर? यहां से ब्लड रिलीज हो जाएगा, बट यहां पर बहुत जल्दी क्लॉट भी बन जाता है। मतलब एक यहां पर मेश लाइक स्ट्रक्चर आके एक जाली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये जाली लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? एक क्लॉट के जैसा काम करता है और ये जो ओपनिंग था जिससे ब्लड निकल रहा था उसको रोक दिया। रोक देने से क्या होगा? इसके अंदर जैसे ही आपकी जो सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ये सारे के सारे आके वहां पर जम के वो बाहर निकल नहीं आया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। तो वो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जो मेन प्रोटीन का आपका मदद आता है दैट इज द फाइब्रिन। सो फाइब्रिन हेल्प्स इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, या सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि फाइब्रिन वो है केमिकल जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में आसानी कर देता है, ब्लड को जमाट बांधने में। ठीक, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हेल्प पर हो रहा है, क्यों? ड्यू टू फाइब्रिन का प्रेजेंट। ठीक है, तो फाइब्रिन जहां पे होगा ब्लड वहां पे क्लॉट करेगा। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है सर? ये ब्लड, काफी बार इससे आपके नीट लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई डू मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट? क्यों मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं होता है? और उसका पूरा जवाब हो जाएगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। लाइसिन शब्द का मतलब क्या है? लाइसिस
ब्रेक डाउन। तो फाइब्रिन की वजह से जो भी आपका ये क्लॉट स्ट्रक्चर बनना चालू हो सकता है ड्यू टू एन एंटी कोआगुलेंट। फाइब्रिन अगर कोआगुलेंट होगा तो फाइब्रिनोलाइसिन क्या हो जाएगा? दिस विल बी एन एंटी कोआगुलेंट which will be present inside the blood, therefore it will prevent the menstrual blood from getting clotted. Clot formation नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए? लेकिन आप बोलोगे सर किसी किसी में तो आपका क्लॉट संभव हो सकता है अगर बहुत ज्यादा इस मेंस्ट्रुएशन। अच्छा एक चीज और, ये जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस के जो मोड हम लोग पढ़ रहे हैं सर, इस पूरे टर्म को हम लोग नाम देंगे, ये जो भी चीजें हो रहा है इसके अंदर, इस पूरे चीज को हम लोग नाम देंगे मेंस्ट्रुएशन। क्या नाम देंगे सर? इसी प्रोसेस को ही हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक, तो मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस विच इज हैपनिंग इनसाइड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? और मेंस्ट्रुएशन को कभी कभार वीपिंग ऑफ द यूटेरस भी बोलते हैं। वीपिंग मतलब क्या है? रोना। कोई क्यों रोएगा? अगर उससे कुछ चीज चला जा रहा है तो यहां से उसका क्या चला जा रहा है सर? एंडोमेट्रियम जो बना था, वो एंडोमेट्रियम जो उस जाइगोट या एम्ब्रायो को इंप्लांट करने के लिए बना था, वो स्ट्रिप्स के आकार में धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन, और इस मेंस्ट्रुएशन को ही हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? वीपिंग ऑफ द यूटेरस। बिल्कुल समझ में आया? तुरंत एक बार हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव मोड पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन कब होगा, डिस्ट्रक्टिव चेंजेस कब होगा? जब आपका जो ओवम होगा, दैट ओवम विल बी अनफर्टिलाइज्ड। अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड होगा तभी जाके उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? क्या चीज का डिस्ट्रक्शन होगा? जो प्री जेस्टेशनल एंडोमेट्रियम होगा, ये जो एंडोमेट्रियम पूरा तैयार होकर रखा हुआ है, इस एंडोमेट्रियम का आपका डिस्कार्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एंडोमेट्रियम स्ट्रिप्स। अब क्योंकि ये आपका एक पार्ट ऑफ ए टिश्यू है, तो जब टिश्यू रप्चर होगा ऑब्वियसली उसके अंदर से ब्लड निकलेगा। तो अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होगा? 40 to 80 ml ऑफ ब्लड विल बी डिस्कार्डेड आउट। ठीक है, और क्या क्या चीज निकल के आएगा इस ब्लड के साथ? सबसे पहला जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम हुआ, जिसको स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब इट विल बी डिसेंड डाउन फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूटेरस, और ये यूटेरस से होते हुए, वेजाइना होते हुए, सर्विक्स वेजाइना होते हुए बाहर निकल जाएगा। क्लियर है सर? ठीक, नेक्स्ट, तो द अनफर्टिलाइज्ड ओवम विल बी रिलीज अलॉन्ग विथ, उसके बाद जो मेन पॉइंट हो जाएगा, देयर विल बी ऑल्सो अ केमिकल प्रोटीन दैट इज द फाइब्रिनोलाइसिन। और ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या होगा? दिस एक्ट एज एंटी कोआगुलेंट, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। ठीक है, आप बोल रहे थे कि अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग पीरियड्स, अगर बहुत ज्यादा किसी के अंदर ब्लीडिंग होता है, उसका एक ही रीजन है कि फाइब्रिनोलाइसिन को अपना काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको भी मौका चाहिए उस क्लॉट फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। ठीक, क्योंकि उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है? हमारा ब्लड का नेसेसरी कंडीशन क्या है? जैसे ही वो बाहर आएगा, वो तुरंत उस जगह, जिस जगह से उसका ब्लड बाहर आ रहा है, वहां पे एक क्लॉट फॉर्मेशन होगा, ताकि तुरंत आपका एक जाली लाइक स्ट्रक्चर बन के जितने भी ब्लड सेल्स है उसको रोक देगा वहां पर। ठीक है, बट अगर वो फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? फाइब्रिनोलाइसिन को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, उस क्लॉट को तोड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्लॉटिंग उसके अंदर ज्यादा तो होता रहेगा। ठीक है, तो क्लॉट्स अगर हो रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर, दैट मींस हेवी ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से। ठीक है, जनरली जो होगा ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ड्यू टू फाइब्रिनोलाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में इससे ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे यहां पर, दैट इज अबाउट द कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस हम लोग बहुत अच्छी तरह डील करेंगे जब बात करेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट इम्प्लांटेशन। जब प्रेगनेंसी हो जाएगा, मतलब क्या है? यहां पर हम लोग अनफर्टिलाइज्ड ओवम की बात किए थे, यहां पर ये जो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होगा कब होगा? जब जो ओवम है दैट
गेट्स फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म और दोनों का फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा क्या चीज? जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से नीचे उतरेगा यूटेरस के अंदर और यूटेरस के अंदर आएगा और फाइनली इट विल बी गेटिंग इम्प्लांटेड टू द वॉल ऑफ यूटेरस। जो यूटेरस का वॉल है, इस यूटेरस के वॉल के साथ ये जो जाइगोट है वो और अच्छी तरह आपका एम्ब्रायो में बनेगा। वो स्टेजेस हम लोग एक एक करके बाद में देखेंगे। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए कि ये जो चेंजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस चेंजेस इनटू टू टाइप्स, डिस्ट्रक्टिव चेंज, कंस्ट्रक्टिव चेंज। डिस्ट्रक्टिव चेंज कब होगा? ड्यूरिंग अनफर्टिलाइजेशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नहीं होगा तब उसके अंदर आपका क्या होगा प्रोसेस? मेंस्ट्रुएशन। And what do you mean by menstruation? The menstruation is the blood loss from the body of the female. ठीक है, ब्लड लॉस क्यों होता है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियल स्ट्रिप्स है वो अलग बाहर निकल रहा है। उसके अंदर से क्या होगा? 40 to 80 ml ऑफ ब्लड आएगा और उस ब्लड के साथ साथ आपके एक तो ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम बाहर निकलेगा, एक फाइब्रिनोलाइसिन बाहर निकलेगा और कुछ अमाउंट में, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, थोड़े बहुत WBC भी इसके साथ बाहर निकल के आएगा। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस है वो कब होंगे? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, बहुत अच्छी तरह जो बना था, इट विल बी रिसीविंग द स्मॉल जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड नाउ इम्प्लांटेशन प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका शुरू हो जाएगा द कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। मतलब इसके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम बना था वो वैसे के वैसे ही इंटैक्ट रह गया। अब वो एक प्रोटेक्शन की तरह कवर कर जाएगा द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, तो वो हम लोग स्टेज पढ़ेंगे इन एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है सर, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे उस टॉपिक के अंदर हम लोग फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 अलग अलग फेजेस के अंदर होते हैं। वो चारों के अंदर ही हम लोग एक एक चीज को लेके देखेंगे। ठीक, और साथ साथ मैंने इससे पहले आपको बताया था कि चेंज किसके अंदर होते हैं? एक तो होगा यूटेरस के अंदर, एक ओवरी के अंदर और हार्मोन्स के अंदर। तो 4 अलग अलग स्टेज को लिख के हम लोग एक साइड उसके देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द यूटेरस एंड इनसाइड द हार्मोन्स। ठीक है, क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट करके कोई भी आप पॉइंट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि फेजेस को पढ़ने के पहले, अभी जो मैंने 4 फेजेस की बात किया आपके सामने, फेजेस पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कैसे करके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड में शेयर कर चुका हूं। बट क्या आपको बहुत अच्छी तरह वो समझ में आया है? मेरे ख्याल से बहुतों को नहीं आया होगा, बहुत ने तो देखा भी नहीं होगा। तो उसके लिए एक बार और मैं सबसे पहले फेजेस में जाने से पहले मुझे, क्योंकि फेजेस में कुछ हमें उस कैसे करके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ठीक है, और ये जो टर्म है, ये जो पूरा सेंटेंस है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, इसी को ही हम लोग नाम देते हैं folliculogenesis. So what do you mean by folliculogenesis? It is the stages of development of the follicles which are happening inside the female ovary. ठीक है सर? सॉरी। सो सबसे पहले हम लोग एक ओवरी ड्रॉ कर लेते हैं सर। क्लियर? और इस ओवरी के हम लोगों को पता है 2 अलग अलग डिविजन्स हो। जैसे हम लोग किडनी के अंदर भी देखे थे कि आपका एक आउटर रीजन था और एक इनर रीजन था। तो हर ओवरी के अंदर ऐसे आपके 2 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, द आउटर स्ट्रक्चर विल बी नोन एज द कॉर्टेक्स, और जो इनर स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे द मेड्यूला।
बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे कॉर्टेक्स, और जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे मेड्यूला। ठीक है, तो जनरली जो ये आपके प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी वोसाइट वगैरह, ये सब कहां पर नजर आता है सबसे ज्यादा? दे आर ऑल प्रेजेंट विद इन दिस corticular region of the ovary or the female cortex of the ovary। ठीक है, तो मेड्यूला का क्या काम है? जितने भी ब्लड वेसल्स वगैरह है, जितने भी ब्लड आपके, जैसे मान लीजिए द आर्टेरियोल्स, द वेनियोल्स, जो क्योंकि दिस इज ऑल्सो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है, तो हर एक सेल को ब्लड वगैरह चाहिए होगा सर। ठीक, तो वो सब ब्लड वगैरह ले आने का काम रहेगा ब्लड वेसल्स का, विच विल बी मेनली प्रेजेंट इनसाइड द मेड्यूलर रीजन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉर्टेक्स के अंदर पढ़े थे कि यहां पर काफी सारे अराउंड 60,000 to 80,000 क्या थे? प्राइमरी वोसाइट थे, था या ना? बहुत सारे प्राइमरी वोसाइट्स थे इन द कॉर्टेक्स रीजन। क्लियर? अब हर महीने इसमें से काफी सारे प्राइमरी वोसाइट will be surrounded by a layer of granulosa cells, और इस टाइप ऑफ सेल को हम लोग नाम देते थे द प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है सर, प्राइमरी वोसाइट थे। प्राइमरी वोसाइट डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है? ठीक, जो बता पा रहे हो वो तो पढ़ रहे हैं, जो नहीं बता पा रहे हो प्लीज गो थ्रू द स्लाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। ठीक, सो जो प्राइमरी वोसाइट है वो प्राइमरी वोसाइट क्या है? दे आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर सबसे पहले अपना चारों तरफ एक ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर बनाएगा, और ये स्ट्रक्चर जो बनेगा इसको हम लोग नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। मतलब फॉलिकल्स बनने का स्टेज शुरू हो गया है। धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा दूसरा स्ट्रक्चर जिसको नाम देंगे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको नाम देंगे हम लोग टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है सर, टर्शियरी फॉलिकल फाइनली एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, सो प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, मतलब इसमें जो ये चेंज हो रहा है, इस चेंज मतलब क्या हो रहा है? लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और यहां पर जाके याद करो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एंट्रम। ठीक, तो ये जो स्टेजेस है ऐसे करके प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और टर्शियरी से फाइनली क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, ये जो स्टेज है इस स्टेज को ही हम लोग नाम देंगे फॉलिक्यूलोजेनेसिस। और ये जनरली कौन से हार्मोन के वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू द सीक्रिएशन ऑफ FSH हार्मोन। क्या होता है FSH का फुल फॉर्म? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो वो हार्मोन जो स्टिम्युलेट करता है किसको? फॉलिक्यूल्स डेवलप होने के लिए। तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है सर? ओवरी से? नहीं, कहां से? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी से। और वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से कब निकलेगा? जब ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस सबसे पहले निकालेगा क्या? GnRH। दिस इज योर हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस इनसाइड द ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस निकालेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपका द पिट्यूटरी ग्लैंड, द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और तब जाके जब GnRH इसको स्टिम्युलेट करेगा, ये आपके दो हार्मोन रिलीज करता है, एक FSH और एक
LH। याद करो सर, पूरा पढ़ाया हुआ है ये सारा चीज। तो ये जो FSH है ये आपका किसमें मदद करेगा? इन द फॉलिकल्स डेवलपमेंट या फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ठीक है, अब हम लोग कहां पर आ गए, किस स्ट्रक्चर पे आ गए फाइनली? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग एक मैच्योर फॉलिकल का नाम भी देते। ठीक है, तो ये जो फॉलिक्यूलोजेनेसिस होगा इट विल बी टर्मिनेटिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब दो चीज होगा सर। सबसे पहले क्या होगा ना, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और रप्चर होकर क्या निकलेगा? ओवम विल बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम द ओवरी, जिसको हम लोग नाम देते हैं ओव्यूलेशन। और सर ओव्यूलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन? पिट्यूटरी हार्मोन जिम्मेदार होगा, LH। ठीक है, तो अब तक क्या हो रहा था? FSH ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है, डेवलपमेंट इन द फॉलिकल्स बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन गया है तुरंत आपका FSH से जो LH का मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने के कारण से ही जो ग्राफियन फॉलिकल है इट विल रप्चर, और जैसे ही रप्चर होगा द ओवम विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द ओवरी, फॉर्मिंग ओव्यूलेशन विल ऑकर। तो जब LH का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं LH सर्ज। ये शब्द अभी याद रखो, जब हम लोग फेजेस के अंदर आएंगे तब भी हम लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है, अब सर ओवम तो निकल गया, तो ग्राफियन फॉलिकल फट गया है, फट के खाली सा डब्बा जैसा बन गया है सर। तो ये जो खाली सा डब्बा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट थे वो तो बाहर निकल गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? वी नेम इट द कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, आगे क्या होगा कॉर्पस ल्यूटियम से वो हम लोग फेजेस के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार और तुरंत देख लेते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ओवरी के अंदर दो पार्ट्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर देयर आर एम्पल नंबर ऑफ प्राइमरी वोसाइट सेल्स। ठीक है, हर प्राइमरी वोसाइट आपका अपने अपने चारों तरफ एक ग्रैन्युलोसा सेल्स का कवरिंग करेगा और उसका स्ट्रक्चर बनेगा प्राइमरी फॉलिकल के नाम से। प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से आपका फाइनली मैच्योर फॉलिकल विच इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही आ जाएगा, अच्छा ये किसके लिए हो रहा है ये? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द सिक्रिएशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, FSH हेल्प्स इन फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अब ग्राफियन फॉलिकल बन गया, FSH की मात्रा से द LH हार्मोन का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा, causing an LH surge, a sudden increase in the level of LH, या जिसका नाम है luteinizing hormone। उसके वजह से the ovulation will occur, the ova will get released, and finally the Graafian follicle will be getting into a structure. That structure is known as the corpus luteum। समझ में आया सर? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फाइनली द स्टेजेस के अंदर। और स्टेजेस के लिए क्योंकि हमारे पास लिखने का जगह थोड़ा कम है और उसको अगर मैं एक एक करके लिख के दिखाऊं तो आपको उतना अच्छी तरह समझ नहीं भी आ सकता है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा अच्छी तरह लिख लेता हूं और फिर आपको अच्छी तरीके से समझाते जाऊंगा कि हर चीज के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं उस टॉपिक पे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बोर्ड में अच्छी तरह 4 फेजेस को अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो आपका होगा दैट विल बी द ब्लीडिंग फेज, और इस ब्लीडिंग फेज को ही हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट फेज हो जाएगा आपका फॉलिक्यूलर फेज, या इसी को ही हम लोग नाम देंगे प्रोलिफरेटिव फेज। एक एक को पकड़ के हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड फेज जो होगा दैट विल बी योर ओव्यूलेटरी फेज,
और फाइनली हमारा जो फोर्थ और लास्ट फेज होगा दैट विल बी द सीक्रेटरी और द ल्यूटियल फेज। और जैसे मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल अबाउट चेंजेस किनके अंदर होंगे ना, आप देख सकते हैं द चेंजेस विल बी इनसाइड द यूटरस, चेंजेस विल बी इनसाइड द ओवरी एंड द चेंजेस विल बी इन योर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग उसको पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि विच फेज विल स्टार्ट ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो हमेशा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होता है विथ द ब्लीडिंग फेज, या जिसको हम लोग नाम देंगे मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या चीज होते हैं ना, हम लोग पहले भी बात किए थे इन द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस के अंदर, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, कि कैसे करके एंडोमेट्रियम जो फॉर्म हुआ था वो एंडोमेट्रियम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कैसे करके बाहर आ गए। ठीक वैसे ही आपके इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि यूटरस के अंदर बनता है एंडोमेट्रियम, तो वो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, इट विल बी गेटिंग डिस्कार्डेड। ठीक, तो वो पूरा प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं यहां पे मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स। ठीक, मतलब वही रिलीज ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड ओवम, रिलीज ऑफ द ब्लड 40 to 80 ml ऑफ ब्लड जो हम लोग डिस्कस किए थे अभी। ठीक, उसके बाद रिलीज ऑफ द सम WBCs और एक केमिकल दैट इज योर फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, जो क्या था एंटीकोआगुलेंट, जिसके हिसाब से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता था। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके यूटरस के अंदर चेंज। कमिंग टू द ओवरी, अब यूटरस के अंदर तो आपके ये ब्लड शेड वगैरह सब कुछ होना चालू हो जाएगा, वेजाइनल आपके आउटकम से वो सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। जो ओवरी है, तब ओवरी के अंदर फिर नए तरीके से काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, अभी हम लोग इससे पहले फॉलिकल्स देखे थे कि कैसे प्राइमरी वो साइड प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, द स्टार्टिंग ऑफ द फॉलिक्यूलर जेनेसिस। तो वहां पर काफी सारे हर एक ओवरी में आपके बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा इनसाइड द ओवरी। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर फॉलिकुलर जेनेसिस हो रहा है इसका मतलब वो सिर्फ एक ही हार्मोन की वजह से हो सकता है, दैट इज योर द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मतलब ज्यादा मात्रा में आपका FSH निकलेगा, जिसके कारण इनसाइड द ओवरी प्राइमरी फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। क्लियर? मूविंग ऑन, ये कितना दिन तक चलेगा सर? ये चलेगा आपके स्टूडेंट्स 4 to 5 डेज तक। जो ये ब्लीडिंग साइकिल का होगा आपका, ब्लड विल बी कमिंग आउट अलॉन्ग विद द डिस्कार्डेड एंडोमेट्रियम, दैट विल बी कैरिंग ऑन फॉर अबाउट 4 to 5 डेज। क्लियर? नाउ बिगिनिंग विद द नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट फेज, दैट इज योर फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। यहां पे दो शब्द आ रहे हैं, देखो, एक तो फॉलिक्यूलर हमें समझ में आ रहा है, मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल्स यहां पे आपके शुरू हुए थे बनने, वो धीरे धीरे करके आपका प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल बनेगा। तो जब फॉलिक्यूलोजेनेसिस जो इससे पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, वो एक्चुअली कहां पर होगा, कौन से फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, वो हो जाएगा आपका फॉलिक्यूलर फेजेस के अंदर। इस फॉलिक्यूलर फेजेस को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं एज द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन इज अ टर्म जहां पे हम लोग समझते हैं कि इट relates to the enormous amount of cell division which is taking place। ठीक है, तो सेल डिवीजन, बहुत सारे सेल्स आपके बन रहे हैं उसके अंदर, तो वही सेल डिवीजन को हम लोग समझाते हैं यहां पर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो दिस इज योर फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। ये कितना दिन तक चलेगा ना, जिस दिन आपका ये मेंस्ट्रुअल आपका फेज बंद होगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन विल स्टॉप, ठीक उसी दिन से ही आपका शुरू हो जाएगा फॉलिक्यूलर फेज। और कितना दिन तक चलेगा ये ना, अराउंड 5th डे ऑफ द साइकिल टू द 13th डे ऑफ द साइकिल तक ये प्रोलिफरेटिव फेज चलेगा। तो लगभग अगर देखा जाता है, दिस प्रोलिफरेटिव फेज विल कंटिन्यू फॉर अराउंड 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट वही यूटरस के अंदर क्या चेंज होगा ना, जो एंडोमेट्रियम आप बिल्कुल डिस्कार्ड हो चुका है, अब नई तरीके से एक साइकिल शुरू हुआ, तो वही जो आपका एंडोमेट्रियम है उसका दोबारा से फिर रीजेनरेशन या रीसिंथेसिस शुरू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो रीसिंथेसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स इनसाइड द यूटरस। क्लियर है? ओवरी के अंदर क्या होगा, फॉलिक्यूलर जेनेसिस,
तो हर ओवरी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होके रहेगा। यहां पर एक बहुत अच्छी तरह चीज सुनिएगा, प्राइमरी फॉलिकल्स काफी सारे डेवलप होंगे, बट फॉलिक्यूलर फेज के अंदर उनमें से कोई एक ही प्राइमरी फॉलिकल अब will be entering into the second stage, that is it will be undergoing to perform folliculogenesis. क्लियर है? तो ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्शियरी बना, टर्शियरी से आपका मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब यहां पर एक चीज आता है, मैं हार्मोनल चीज को पहले बताता हूं यहां पे कि ये क्यों हो रहा है सर फॉलिकुलर जेनेसिस। वही सेम आपका एफएसएच बढ़ रहा है। अब एफएसएच का लेवल क्यों बढ़ता है उसका भी जवाब है सर कि जैसे ही आपका सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनना चालू हो जाता है, एक आपका यहां पे हार्मोन बनता है इससे, ओवरियन हार्मोन, दैट इज योर एस्ट्रोजन, द फीमेल ओवरियन हार्मोन। ठीक, एस्ट्रोजन का काम होगा दो काम। पहला काम होगा इट हेल्प्स इन द रीसिंथेसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। समझ में आया? मतलब ये जो आपका एंडोमेट्रियम का रीसिंथेसिस हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन। क्लियर? और एस्ट्रोजन कहां से रिलीज हो रहा है? विद इन द ओवरी। ये ओवरी के अंदर हो रहा है ना, बताओ। ठीक, तो ये एस्ट्रोजन जो होगा दिस विल बी हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। क्लियर है? यही एस्ट्रोजन जो निकल रहा है, अब देखना, यही एस्ट्रोजन आपका अब एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा। क्लियर? यही जब एस्ट्रोजन निकल आना चालू हो जाएगा, यही एस्ट्रोजन आपका एक सिग्नल भेजेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, टू रिलीज मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एफएसएच। क्लियर? इस टाइप ऑफ फीडबैक को, कि ये फीडबैक दे रहा है जिसके वजह से दूसरा कोई हार्मोन है उसका सिंथेसिस या उसका लेवल बढ़ रहा है, उसका सीक्रिएशन बढ़ रहा है। इस टाइप ऑफ फीडबैक को हम लोग नाम देंगे पॉजिटिव फीडबैक। याद करो आप लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11 के अंदर ये चीज देखे थे सर कि देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर कोई हार्मोन एक दूसरे कोई आपका ग्लैंड को सिग्नल भेज रहा है जिसके हिसाब से अब उस ग्लैंड से कोई दूसरा हार्मोन ज्यादा अमाउंट में निकलेगा। ठीक, अगर सीक्रिएशन आपका ज्यादा हो रहा है तो दैट सिग्नल विच इज सेंडिंग बाय द प्रीवियस हार्मोन, उस टाइप ऑफ फीडबैक को हम लोग नाम देंगे पॉजिटिव फीडबैक। यही चीज अगर मैं नेगेटिव वे में बोलूं कि रिलीज हो रहा है जिसके वजह से कम अमाउंट में कोई आपका हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं जो स्लाइड आपको भेजा था उसके अंदर देखा जाएगा कि इनहिबिन करके आपका एक हार्मोन होता है जो मेल्स के अंदर सर्टोली सेल्स रिलीज करता है, और आपके यहां पर भी ओवरी से आपका रिलीज होता है क्या चीज? इनहिबिन। तो वो इनहिबिन नाम से ही पता चलता है कि इनहिबिट करता है कोई दूसरे हार्मोन को रिलीज करने से। तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। बट यहां पे एस्ट्रोजन आपका क्या कर रहा है? एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ दिस एफएसएच हार्मोन इज गेटिंग रिलीज्ड। एफएसएच हार्मोन रिलीज होगा ज्यादा से ज्यादा, जिसके वजह से जो आपका ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है ये ज्यादा मात्रा में आपका फॉलिकल्स बनना चालू हो जाएगा, ज्यादा तेजी से बनना चालू हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना दिन के लिए चलेगा? 10 दिन के लिए। नेक्स्ट, अब ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, 13th डे हो गया अपना, 13 दिन बाद काम हो गया अपना। उसके बाद जब हम लोग 14th डे ऑफ द साइकिल में आएंगे, देन जो ये ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल बन के तैयार हो गया था, मैच्योर हो गया था, अब अचानक जो एलएच का अभी तक आपका देखा जाएगा इसमें द अमाउंट ऑफ एफएसएच विल बी मोर देन दैट ऑफ एलएच। बट यही चीज ओव्यूलेटरी फेज के अंदर आके एलएच का एक सडन इंक्रीज दिख जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो जैसे ही आपका मैच्योर फॉलिकल बन गया, ऑब्वियसली देयर विल बी नॉट नेसेसरी फॉर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एफएसएच बनना, क्योंकि ऑलरेडी फॉलिकुलोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, मैच्योर फॉलिकल बन चुका है। ठीक, अब ये मैच्योर फॉलिकल जैसे ही बन गया, एफएसएच का मात्रा धीरे धीरे डाउन होना रहा और एलएच का मात्रा बढ़ने लगा। क्लियर? ये सडन इंक्रीज इन द एलएच will be causing the very important part, that is rupturing of the Graafian follicle and causing the release of the ovum,
जिसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। मतलब इन योर ओव्यूलेटरी फेज ओव्यूलेशन ऑकर्स। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, द ओवम गेट्स रिलीज्ड। क्लियर? और ये जो अचानक एलएच का आपका लेवल में इंक्रीज हो रहा है, इसी को ही हम लोग नाम देते हैं एलएच सर्ज। ठीक है? द सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच ड्यू टू विच ओव्यूलेशन ऑकर्स या रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ऑकर्स, दैट सडन इंक्रीज इज कॉल्ड द एलएच सर्ज। क्लियर है? अच्छा, यहां पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी हम लोग और कुछ इसके अंदर, जैसे यहां पे लिखे थे रीसिंथेसिस ऑफ एंडोमेट्रियम, यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक? क्योंकि यहां पर सेम चीज चलता रहेगा, मतलब यहां पर भी द एंडोमेट्रियम विल बी कंटिन्यूइंग टू गेट रीसिंथेसाइज्ड। धीरे 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 एक्यूमुलेशन ऑफ द टिश्यूज होता रहेगा इन द एंडोमेट्रियम। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, ओवम निकल गया। ठीक? ओव्यूलेटरी फेज कंप्लीट हो गया। मतलब यहां तक आके अपना एफएसएच से एलएच का मात्रा ज्यादा हो गया। ठीक? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लास्ट, दैट इज योर द सीक्रेटरी फेज। मतलब कुछ सीक्रिएशन हो रहा है, तो सीक्रिएशन कौन करेगा यहां देख लेते हैं। अगेन यहां पर यूटेरस के अंदर हम लोग जो थे, यूटेरस के अंदर यहां पर आके हम लोग देख रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियम है उसका कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल इज कंप्लीटेड। ठीक है? तो पूरा का पूरा जो एंडोमेट्रियम बन रहा था, जो आपका रीसिंथेसिस होना चालू हो गया था, दैट गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर। टोटल कितने दिन तक आप रहता है सेक्रेटरी फेज? नाइट लास्ट फ्रॉम 12 to 14 डेज। ठीक? नेक्स्ट, जो सेक्रेटरी फेज के अंदर अभी आपका ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकल गया, तो ग्राफियन फॉलिकल अब किस पे चेंज होगा? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज होगा सर। और ये कॉर्पस ल्यूटियम से एक येलो बॉडीड पिगमेंट निकलता है सर। ठीक है? दैट पिगमेंट इज कॉल्ड ल्यूटीन। ठीक है? सो कॉर्पस ल्यूटियम से एक पिगमेंट निकलता है आपका, जिसका नाम है ल्यूटीन। और इसीलिए हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम को येलो कलर्ड बॉडी भी बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे ही आपका ये ल्यूटीन होगा, ये ल्यूटीन क्या करेगा सर? ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, this will be now increasing to secrete a hormone which is called progesterone. क्लियर है? तो प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा, प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रिएट कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, वैसे वैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर? और ये प्रोजेस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। दिस प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो हेल्प्स in maintaining the intact structure of the endometrium. क्लियर? ये जो एंडोमेट्रियम बन के पूरा तैयार हो गया है, इस इंटैक्ट स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए सबसे मेन कौन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरॉन। जब तक प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता रहेगा या बहुत अच्छी तरह सीक्रिएट होता रहेगा, तब तक एंडोमेट्रियम बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट रह जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? तुरंत देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास 4 फेजेस हैं: ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, एंड द फाइनल वन इज सीक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। ब्लीडिंग फेज मतलब जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। यूटेरस के अंदर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, जो भी एंडोमेट्रियल टिश्यूज बने थे वो सारा कुछ डिस्कार्ड हो जाएगा। कितना दिन तक चलेगा? 4 to 5 डेज। ठीक है? ओवरी के अंदर क्या चेंज होगा ना? हर एक ओवरी के अंदर काफी सारे आपके प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होना चालू हो जाएगा। हॉर्मोन्स, एफएसएच का मात्रा बढ़ेगा सर यहां पर। ठीक है? नेक्स्ट, प्रोलिफरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज। तो सबसे पहले ओवरी में डिस्कस कर लेते हैं। ओवरी के अंदर जो आपका प्राइमरी फॉलिकल था, अब इट विल स्टार्ट द फॉलिक्यूलोजेनेसिस। मतलब प्राइमरी से लेके सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से वो एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये आपका एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का 2 काम है। पहला काम, रीसिंथेसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। क्लियर? द चेंजेस इन द यूटेरस। ठीक है? एस्ट्रोजन से एक पॉजिटिव फीडबैक देता है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज more and more of the FSH hormone. Clear है? Now at the end of the proliferative phase, at the in the middle part of the cycle, ठीक? 14 दिन 15 दिन के
जो आपका वक्त है उसमें आपका होगा द ओव्यूलेटरी फेज, और जो ग्राफियन फॉलिकल इसमें बना था, ग्राफियन फॉलिकल आपका फूट के वहां से ओवम बाहर निकल जाएगा। क्लियर? और यहां पर किस लिए वो आपका रप्चर होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल, सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, जिसको हम लोग नाम देते हैं LH सर्च। क्लियर है? ये टर्म और आप याद रखना, फीमेल्स के अंदर आपका उनको पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है या ओव्यूलेशन होने वाला है बहुत जल्दी। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ, आप धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही आपका सीक्रेट होना चालू हो जाता है बॉडी के अंदर, तुरंत ये प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, देखो BBT एक टर्म लिखवाया है मैंने यहां पर, ठीक है, बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है फीमेल्स के अंदर, ड्यूरिंग द डे ऑफ द ओव्यूलेशन, दैट टेम्परेचर विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड बाय 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? ठीक। फाइनली ओव्यूलेशन हो गया, ओवा निकल गया बाहर, जो ग्राफियन फॉलिकल होगा इट विल बी नाउ एंटरिंग इनटू द ल्यूटियल या सीक्रेटरी फेज बाय चेंजिंग इटसेल्फ इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम था वो बिल्कुल बन के तैयार होकर रखा हुआ है। अब किसी भी वक्त जो ओवा निकला है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया, तो नाउ इट विल बी मूविंग डाउन फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब इनटू द यूटेरस एंड नाउ इट विल बी गेटिंग इम्प्लांटेड। तो इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल एंडोमेट्रियम बन के तैयार हो चुका है। कितने दिन के लिए होता है? 12 to 14 डेज। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये एक येलो कलर पिगमेंट बनाता है, दिस इज कॉल्ड द ल्यूटिन, और ल्यूटिन से आपका क्या सीक्रेट होता है सर? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। इसके बाद आप नोट्स से भी, मैं जो आपको नोट्स दूंगा उसको भी आप रेफर कर सकते हो, तो आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और छोटा सा एक फाइनल टॉपिक बचा है कि जो अपना ये एग निकला, द ओवम विच गेट रिलीज्ड, उसका फेट क्या है, क्या हो सकता है उसके साथ? दो कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, अगर अनफर्टिलाइज्ड होगा तो क्या होगा। तो अनफर्टिलाइज्ड अगर होगा तो हम लोगों को पता है सर, वही सेम चीज मेंस्ट्रुएशन विल अगेन ऑकर। ठीक। और अगर आपका वो फर्टिलाइजेशन हो चुका तो क्या हो जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक। सो मेंस्ट्रुअल फेज हम लोग देख लिए। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो साइकिल का आपका लास्ट हो गया है, क्योंकि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस हम लोग पढ़ लिए। अब आफ्टर 28 to 30 डेज क्या होगा, व्हाट विल बी, ये जो ओवम निकला इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगेन देयर विल बी क्या, एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन शुरू हो जाएगा, या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो आफ्टर 28 to 30 डेज ये जो एग है उसके पास दो कॉन्सिक्वेंसेस है। आइदर इट गेट्स अनफर्टिलाइज्ड, इट विल नॉट बी गेटिंग फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, या वो एग विल बी forming fertilization with the sperm and having as a result produced zygote, ये कंडीशन हो सकता है। चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग हुआ तो हम लोग जानते हैं कि वही जो एंडोमेट्रियम आपका बना था वो डिस्कार्ड हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल अगेन बिगिन। ठीक है, तो आफ्टर 28 to 30 डेज के बाद, सीक्रेटरी फेज खत्म हो जाने के बाद, सबसे पहला फेट होगा क्या, कि वो जो एग है क्या वो फर्टिलाइज हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। अगर दैट एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, सबसे पहले जो होगा, जो भी आपके यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम बने थे वो सारे के सारे along with that unfertilized ovum will be released out of the body in the form of menstrual flow या menstruation will occur। और menstruation से हम लोग को पता है कि then that will be the beginning of a new cycle। क्लियर? अंदर क्या चीजें हो सकता है सर, क्यों आपका ये menstrual cycle आपका नया तरीके से बिगिन हो गया, क्यों एंडोमेट्रियम आपका कट रहा है या टूट रहा है, वो हम लोग देखेंगे ना। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से आपका ओवम निकल गया, ग्राफियन फॉलिकल बन के आ गया था कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अब धीरे धीरे डीजेनरेट करना चालू कर जाएगा। क्लियर? डीजेनरेट करते जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम चालू हो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे कॉर्पस एल्बिकेम। क्लियर? और जैसे ही आपका कॉर्पस ल्यूटियम का साइज छोटा होता चला जाएगा, उसके अंदर द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो वो सीक्रिएट कर रहा है उसका लेवल भी धीरे 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 डाउन चला जाएगा। ठीक? तो देयर विल बी अ डिक्रीज और रिडक्शन इन द लेवल ऑफ योर प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही आपका नीचे आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है,
इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन आपका धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब अब आपका एंडोमेट्रियम अपना शेप को इंटैक्ट नहीं रख पाएगा, देयरफॉर द बिगिनिंग ऑफ द न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया सर? ठीक, अब आ जाते हैं इस साइड पे। अगर आपका द एग गॉट फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, तो क्या बनेगा? जाइगोट का स्ट्रक्चर बना, क्लियर। और जाइगोट फिर धीरे 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 नीचे आके अब इंप्लांट हो जाएगा। तो इंप्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बरकरार होना चाहिए, और एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का होना चाहिए सर। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखे थे कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया था, बट यहां पे यही कॉर्पस ल्यूटियम अब आपका वही स्टेज में वो जाके रुक जाता है। इट स्टॉप्स डीजेनरेटिंग, क्लियर। तो वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेता है, जिसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रिएट हो रहा था, इट कंटिन्यूज टू सीक्रिएट प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। और यही प्रोजेस्टेरॉन जैसे सीक्रिएट होता है, तो जो आपका एंडोमेट्रियल वॉल टिश्यूज है आपके यूटेरस के अंदर, वो बिल्कुल इंटैक्ट रह जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट है, प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम भी है। तो एक काम है एंडोमेट्रियम को बरकरार रखने के लिए, दूसरा काम हो जाएगा इट एक्ट्स एज अ इनहिबिटरी हार्मोन फॉर द सीक्रिएशन ऑफ एफएसएच। मतलब अभी हम लोग इससे पिछले पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक की बात किए थे, तो वहां पे पॉजिटिव फीडबैक के जैसे काम कर रहा था कौन? एस्ट्रोजन, जिसके वजह से एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ रहा था। यहां पर देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे आपका सीक्रिएट होता रहेगा, द अमाउंट ऑफ जो एफएसएच है, एफएसएच का मात्रा को कहीं ना कहीं वो रोक देगा निकलने के लिए। और सर अगर एफएसएच सही ढंग से नहीं निकल रहा है, मतलब क्या नहीं हो रहा है? फॉलिक्यूलोजेनेसिस नहीं हो रहा है। मतलब हर ओवरी में जितने अमाउंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए थे, उतने उसी स्टेज में ही रह जाएगा। वो फिर बन के सेकेंडरी, सेकेंडरी से आपका टर्शियरी, वो सब कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो फॉलिक्यूलर जेनेसिस आपका बंद हो गया वहां पर, मतलब क्या है? और एंडोमेट्रियम भी इंटैक्ट रह गया, मतलब नाउ प्रेगनेंसी विल बिगिन। ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक इसके अंदर रीअपियर नहीं होगा जब तक पार्ट्यूरेशन और द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड नहीं हुआ। क्लियर? क्योंकि तब तक उस फीटस को अंदर रखने के लिए एंडोमेट्रियम का दरकार पड़ेगा। एंडोमेट्रियम दरकार के लिए आपका प्रोजेस्टेरॉन काम होगा, और प्रोजेस्टेरॉन के लिए कॉर्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर है वो हूबहू वैसे करके मेंटेन हो जाता है सर। क्लियर है? ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और एक काम करता है, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट भी एक टाइप ऑफ हार्मोन निकलता है इससे, जिसको हम लोग नाम देते हैं द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर? और ये किससे निकलता है? न जाइगोट, हम लोग इंप्लांटेशन में देखेंगे वो चीज और अच्छी तरह, कि जाइगोट को रखने के लिए किसके अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है मदर का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक, तो ये प्लेसेंटा अच्छी तरह एक हार्मोन निकलता है द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये भी कहीं ना कहीं इस कॉर्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर है इनसाइड द ओवरी, उसको सही ढंग से इंटैक्ट रखने में मदद करता है, जिसके हिसाब से प्रोजेस्टेरॉन का वैल्यू बढ़ता रहेगा, और टिल प्रेगनेंसी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका रीऑकर होने नहीं देगा। क्लियर है? ठीक, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होता है विद द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, अगेन अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी अपीयरिंग, और फिर वही आपके 4 फेजेस होते होते आपके हर महीने में आपका ये चीज होता रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह आपको वीडियो समझ में आया अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? अगर थोड़ा सा भी कहीं पर आपको दिक्कत लग रहा है तो यू नो माई नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आपको आप वो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है? तो कल हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, दैट इज अबाउट द इम्प्लांटेशन। ठीक, कैसे करके आपका इम्प्लांट होता है एम्ब्रायो, कैसे करके आपका द एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, और फाइनली पार्ट्यूरेशन होके कैसे करके वो निकल जाएगा। ठीक है? क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जैसे मैं बार बार बताता हूं, तो प्लीज मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी अगर न्यू वीडियोस डालता हूं तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप खुद आपको लगता है कि यहां सही में मुझे समझ में आया, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है? टिल देन, थैंक यू।